معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بیان میں آپ کو بتاؤں گی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب جب آپ نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو وہاں 6 طرح کی گنہگار عورتوں کو دیکھا، اور وہ عورتیں کس وجہ سے گناہ میں مبتلا تھیں تو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ آج یہ بتانا چاہوں گی کہ ان کی گناہوں کی وجہ سے جو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا، اس عذاب کی شدت کو دیکھ کر کے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گی کہ اس بیان کو پورا ضرور سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ ان 6 گنہگار عورتوں میں کہیں ہمارا بھی تو نام نہیں آتا، اور اگر آج تک وہ گناہ کر رہے تھے تو ان گناہوں سے آج ہی توبہ کر لے اور اللہ رب العزت سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق مانگے۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بابا جان سے پوچھا کہ بابا جان، آپ نے جہنم میں جو عورتوں کو دیکھا تو ان کی کیا کیفیت تھی؟ اس پر میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 6 طرح سے عورتوں کو عذاب میں گرفتار پایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہنم کے اندر ایک عورت لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر! صرف لٹکتی ہوئی ہی نہیں بلکہ اس کے سر کے بالوں سے اس کو جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اور یہ کسی سیاسی لیڈر کی گفتگو نہیں، یہ کسی خطیب کی خطابت نہیں، بلکہ اس رسول کا کلام ہے جس نے اپنی زبان کو اتنا محتاط رکھا کہ جب تک کہ حکم الہی نہیں ہوتا اس وقت تک زبان رسول کو جنبش نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر! اللہ کے سچے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو جہنم میں اس کے سر کے بالوں کے بل لٹکایا گیا، اور اس کا حال یہ ہے کہ اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے اور جہنم کی آگ سے اس کی کھوپڑی کھول رہی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر بتی کے چٹکے برداشت نہ کر پانے والی میری بہنوں، اگر صرف جہنم میں تجھے لٹکایا جاتا تو یہ بھی کیا کم تھا، وہ جہنم کی جس کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے، کوئی برداشت کرنے والا نہیں، کوئی بڑی سے بڑا طاقت و قوت والا اسے برداشت نہیں کر سکتا۔ دنیا کی آگ پتھروں کو نہیں جلا سکتی، مگر جہنم کی آگ اتنی تیز ہے کہ جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے۔ تو سوچے ذرا کہ اس جہنم میں اس خاک جسم کا کیا ہوگا۔ اللہ اکبر! آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا، وہ جہنم میں اوندھی لٹکی ہیں، ان کے سر کے بالوں کے ذریعے سے انہیں جہنم میں لٹکایا گیا ہے اور ان کا سر ہنڈیوں کی طرح کھول رہا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ بابا جان، کس وجہ سے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ آخر ان کا قصور کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عورتیں جو گھر سے بے پردہ نکلتی تھیں، کھلے سر نکلتی تھیں، ان کو جہنم میں بالوں سے باندھ کر لٹکایا گیا، ان کے سروں کو ہانڈی کی طرح کھولایا گیا، گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کر فیشن کے نام پر نکلنے والی، مجھے بتاؤ کیا اللہ رب العزت کے اس عذاب سے کوئی تمہیں بچا سکے گا؟ اپنے آپ پر رحم کرو۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا تو یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں ہوگا، نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بھائی بہن کام آئیں گے، نہ شوہر کام آئے گا، نہ باپ ماں باپ کام آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں دوپٹے لٹکائے ہوئے؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں بلکہ سر اور سینوں کو چھپانے کے لیے ہیں۔ دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ دیکھ کر، فلمیں دیکھ دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر ان کی نقل کرنے والی نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہیں، ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز ہیں۔ میری بہنوں، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ زہرا اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے سے ملی تھی، اور آج بھی اگر عزت چاہتی ہو تو ان کے قدموں میں آنے سے ہی تمہیں عزت ملے گی۔ اس لیے آج ہی توبہ کر لو، اور اپنی اس نازک اور کمزور جسم کو اللہ کے عذاب سے بچانا چاہتی ہو تو عہد کرو کہ میرے سر کے بال کو کوئی نہیں دیکھ سکے گا، کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن آج تو حال یہ ہے کہ باریک اور پتلے لباس عورت کی پہچان بن گئے ہیں۔ سر پہ دوپٹہ رکھنے سے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے،
اے میری قوم کی مقدس شہزادیوں، خدا کے لیے جہاں پہاڑ بھی پگھل جائیں گے اس جہنم میں تمہارے اس جسم کا کیا حال ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورتیں کھلے سر بغیر پردہ کیے رہتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دی ہے، اس لیے آج ہی توبہ کرو۔ اور پھر میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دوسری عورت کون ہے کہ اس دوسری عورت کو آپ نے دیکھا، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس کی زبان کے بل اسے جہنم میں لٹکایا گیا تھا۔ اس عورت کی زبان اتنی لمبی تھی کہ جہنم کے اندر اس کو زبان کے بل لٹکایا گیا تھا۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اس کے ساتھ یہ عذاب کیوں ہو رہا تھا، کہ اس کو زبان کے بل جہنم میں کیوں لٹکایا گیا تھا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ منہ چلاتی تھی، وہ بد زبانی کرتی تھی، زبان درازی کرتی تھی، اس لیے اس کی زبان لمبی کر دی گئی اور اس کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ آج کل تو عورتیں شوہر کے ساتھ زبان درازیاں بھی کرتی ہیں، وہ بھی چلاتی ہیں۔ میری بہنوں سن لو، ہمارے یہاں شوہر کے حقوق بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف شوہروں کے ہی حقوق ہیں بلکہ بیویوں کے بھی حقوق ہیں، لیکن چونکہ آج صرف عورتوں کے حوالے سے میں آپ سے باتیں کرنے آئی ہوں، اس لیے میں آپ کو بتانا چاہوں گی اور میں آپ سے یہ چاہوں گی کہ آپ خود کو جہنم کی آگ میں جلنے سے بچا لیں۔ اسی لیے آج عورتوں کی اصلاح ہو جائے تو یہی کافی ہوگا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی بیوی کے جو حقوق شوہر پر ہے اس پر بھی تفصیل سے بیان پیش کیا جائے گا۔ میری بہنوں آپ سے میری گزارش ہے کہ اپنے شوہر کا کبھی دل نہ دکھانا۔ میرے آقا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جو اپنے شوہر کا دل خوش کر دیتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو بغیر حساب کے جنت عطا فرماتا ہے۔ بلکہ اگر عورت اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے سنگار کرتی ہے، اپنے آپ کو سنوارتی ہے تاکہ شوہر کا دل خوش ہو جائے، تو ایسی عورتوں کو نفل نماز پڑھنے سے زیادہ اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میری بہنوں شوہر کا دل نہ دکھاؤ، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن اللہ اکبر حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کل سیریل میں جو دیکھتی ہیں اسے ہی اپنی زندگی میں آزمانا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کرو گی تو گھر جہنم بن جائے گا۔ اور یہ زندگی گھنٹے دو گھنٹے کی سیریل اور فلم نہیں، بلکہ یہ تو زندگی ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ جانے کتنے سال ہماری زندگی کے لکھ رکھے ہیں، اور اگر سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے زندگی کو ویسا ہی بنانا چاہو گی تو زندگی جو ہے وہ جہنم کدہ بن جائے گا، تمہارا گھر جو ہے وہ جہنم بن جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھ کر، ان کی ازواج مطہرات کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی گزارو گی تو پھر تمہارا گھر جنت کا نشان بن جائے گا۔ اگر چاہتی ہو کہ تمہارا گھر بھی جنت کا گہوارہ بن جائے تو پڑھو زندگی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی، پڑھو زندگی سیدہ ام سلمہ کی، پڑھو زندگی حضرت عائشہ صدیقہ کی، پڑھو زندگی سیدہ جویریہ کی، پڑھو زندگی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، پڑھو زندگی ازواج مطہرات کی، زندگی صحابیات کی پڑھو، اور پڑھو زندگی اللہ کے نیک بندوں کی ماؤں کی۔ تب تمہیں پتا چلے گا کہ شوہر کی وفاداری کسے کہتے ہیں۔ اور پھر میرے آقا حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاطمہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ اسے سینے کے بل جہنم کے اندر لٹکایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو کریں، تھوڑا تصور تو کریں کہ کہاں وہ جہنم کی دہکتے ہوئے شعلے اور اس پر سینے کے بل اگر کسی کو لٹکایا جائے تو اس کیفیت سے اللہ ہی پناہ میں رکھے۔ اللہ اکبر، کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا کہ بابا جان، جس کو سینے کے بل لٹکایا گیا تھا آخر اس کا گناہ کیا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو عورتیں شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسرے مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کیا کرتی تھی ان کو سینے کے بل جہنم میں لٹکایا گیا۔ میں بس آج آپ سب سے اتنی ہی گزارش کروں گی کہ ان عورتوں تک یہ پیغام ضرور پہنچا دیا جائے جو اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ اللہ کی اس دردناک عذاب سے ڈر کر کے توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر سکیں۔ جو عورتیں اجنبی مردوں سے ناجائز تعلقات قائم کرتی ہیں، محبت کے نام پر گناہ کا بازار گرم کرتی ہیں، ان کو جہنم میں سینے کے بل لٹکایا جائے گا۔ اور سن لو، میرے رب کا فرمان ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبَّكَ لَشَدِيدٌ، کہ بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جو بھی اس پکڑ میں آوے گا
तो वो फिर बच नहीं पाएगा कि बेशक तेरे रब का अजाब वाक़ई होकर रहेगा और उसे कोई टाल नहीं सकता। जब अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा तो कोई उससे बचाने वाला नहीं होगा। दुनिया की चंद दिनों की रंग रैलियों के लिए, दुनिया की चंद दिनों की ऐशो इशरत के लिए, दुनिया की जिंदगी में चंद दिनों की मौज मस्तियों के लिए तुम अल्लाह के अजाब को क्यों गले लगा रही हो? मेरी बहनों, याद रखो, आज तुम गुनाह में मुब्तला होकर के जिंदगी गुजार रही हो, लेकिन ये दुनिया खत्म हो जाने वाली है और दुनिया तो बाद में खत्म होगी, ये जिंदगी पहले खत्म हो जाएगी। कहाँ है वो लोग जो नाजायज ताल्लुकात को, हराम कारियों को जायज समझते हैं? सीने के बल उन औरतों को ओंधा जहन्नुम में लटकाया जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कैफियत को याद करके रोया करते थे। जिसने देखा वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर्द में रो रहे हैं तो मेरी बहनों जरा गौर करना कि जो इन गुनाहों में मुब्तला हैं उन्हें खुद पर रहम करने की जरूरत है। उन्हें खुद पर रहम नहीं आता। वह रसूल जो देख कर आ रहे हैं, जब वो उस अजाब की कैफियत को देख कर रो रहे हैं तो सोचें जरा कि उन गुनाहों में मुब्तला हैं, जो उन गुनाहों में मुब्तला हैं, जब उनको ये अजाब दिया जाएगा तो क्या उनका ये जिस्म बर्दाश्त करने की ताकत रखेगा? और आज का यह दौर बड़ा ही पुरफितन दौर है। आजकल तो नौजवान लड़कियों को बाज़ाब्ता तौर पर ट्रेंड किया जा रहा है, उनको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि जो लड़कियां उन कामों से बचती हैं, उनकी सहेलियां उन्हें ताने देती हैं कि इसका तो किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं। जो औरतें, जो लड़कियां शरीफ तरीका इख्तियार करती हैं, मर्दों से मेल जोल नहीं रखती, तो उनकी सहेलियां उन्हें ताना देती हैं, कहती हैं कि बेवकूफ़ बन करके ज़िंदगी मत गुजार, ये ज़िंदगी एक बार मिली है, मौज मस्ती अभी नहीं करेगी तो फिर कब करेगी? अच्छी तरह याद रखना मेरी बहनों, ईमान के बाद औरत के लिए अगर सबसे बड़ा कोई सरमाया है तो उसकी हया है। औरत के लिए ईमान के बाद सबसे बड़ा अगर कोई सरमाया है तो उसकी इज्जत है, उसकी पाकदामनी है, उसकी इस्मत है, उसकी आबरू है। इसलिए कि बड़े से बड़ी नेमत जो है अगर वो गुम हो जाए तो इंसान दोबारा इसको पा सकता है, लेकिन औरत की इज्जत अगर एक मर्तबा चली जाए तो दोबारा हासिल नहीं की जा सकती। क्योंकि इज्जत बाजार में मिलने वाली चीज नहीं, बल्कि इज्जत तो जिंदगी गुजार कर कमाई जाती है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कुर्बान जाएं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस तरह खुशबू शीशी के अंदर होती है तो महफूज रहती है और शीशी की बाहर आ जाती है तो बिखर जाती है, इसी तरह औरतें जब घर में रहती हैं इज्जत महफूज रहती है और जब वह घर से बाहर निकल जाती हैं तो इनकी इज्जत बिखर जाती है। हदीस पाक में आता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई औरत घर से बाहर निकलती है तो शैतान मर्दों को इसकी तरफ राग़िब करता है। मगर अल्लाह अकबर, कल औरतों का अंदाज ये था कि घर से निकलती थी तो बुर्का पूरा पूरा पहन कर निकलती थी, चादरें लपेट कर निकलती थी, मजाल है कि उनके नाखून भी कोई देख ले। मगर आज क्या हाल हो गया है, लानत हो इस तरह के सीरियल पर, फैश पिक्चरों पर, जिसने औरतों को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। शादीशुदा होकर के भी अगर शोहर कमाने के लायक न रहा तो दूसरों से ताल्लुक कायम किया जा रहा है। इन औरतों का अंजाम क्या होगा? जहन्नुम में सीने के बल लटकाया गया। और आज की बच्चियां कभी स्कूल के बहाने, कभी कॉलेज में मोहब्बत के नाम पर गुनाह में मुलव्वस होती है। याद रखना मेरी बहनों, आने वाला आएगा, वो तुम्हें लालच देगा, कभी शादी का लालच देगा, कभी कपड़ों का लालच देगा, कभी बाइक पर घुमाने फिराने का लालच देगा, कभी माल दौलत का लालच देगा। लेकिन मेरी प्यारी बहनों, मेरी बच्चियों, इन लोगों के फसाद में ना पड़ना, इन लोगों के फितने में ना पड़ना। वो मोहब्बत का ढोंग रचाएंगे और फिर जिंदगी बर्बाद करने के बाद ऐसे गायब हो जाएंगे कि जैसे उनका तुमसे कोई ताल्लुक ही नहीं था। याद रखना, जिंदगी में आबरू एक बार मिलती है, हया एक बार मिलती है, इस्मत एक बार मिलती है, इज्जत भी एक ही बार मिलती है और दुनिया में आए भी हैं पहली और आखिरी बार। दोबारा दुनिया में आने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐ मेरी कौम की मुकद्दस शहजादियों, आप बहुत मुकद्दस हैं, लेकिन जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कोई मोहब्बत का झांसा देकर, निकाह का झांसा देकर, जेवरात का झांसा देकर, दौलत का झांसा देकर अगर तुम्हारी आबरू को सौदा करना चाहे तो गुर्बत की चक्की में पिसकर मर जाना पसंद करना, मगर आबरू का सौदा मत करना। क्योंकि तुम अल्लाह का कलमा पढ़ती हो, तुम रसूल का कलमा पढ़ती हो। अरे वो रसूल जो पत्थरों की भी किस्मत चमका दे, वो हमारी किस्मत क्यों नहीं बदल सकते? इसलिए अपने नबी का दामन मजबूती से पकड़े रहो, अपने खुदा और अपने नबी पर भरोसा रखो। अगर कोई किसी काम में नाकाम हो जाता है तो लोग कहते हैं कि फुला की किस्मत पर पत्थर पड़ गए हैं। किस्मत में पत्थर पड़ जाए तो आदमी नाकाम हो जाता है।
मेरे नबी तो वो हैं कि जिन्होंने पत्थरों की भी किस्मतें बदल दी। अल्लाह अकबर। जो ओहद पहाड़ को जन्नती होने की बशारत दे दे वो मेरा नबी है। जो अबू जहल की मुट्ठी में कंकरियों को कलमा पढ़वा दे वो मेरा नबी है। जिनको पत्थर भी दरूद सलाम भेजे वो मेरा नबी है। मेरी बहनों, खुद की हिफाजत करो, क्योंकि आजकल तो साजिशों के तहत मुस्लिम बच्चियों के पीछे जालिमों को छोड़ा जा रहा है ताकि वो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए रोता बिलखता छोड़ दे। ये बहुत नाजुक वक्त है। अपनी इज्जत की हिफाजत तुम्हें खुद करनी होगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम के अंदर जो चौथी औरत को देखा तो उसको उस तरह से अजाब दिया जा रहा था कि उसके दोनों पांव सीने से बांधे हुए थे और दोनों हाथ सर से बंधे हुए थे। सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि बाबा जान, उसको ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा, इस औरत को ये अजाब इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि वो दुनिया में पाकी का ख्याल नहीं रखती थी। ये वो औरत है जो दुनिया में जनाबत और हैज से पाक होने का इत्मीनान नहीं करती थी, यानी गुस्ल जनाबत सही तरीके से नहीं करती थी, गुस्ल हैज सही तरीके से नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही का मामला रखती थी। क्योंकि जब गुस्ल सही नहीं हुआ तो फिर तुम नापाक ही हो, और जब तुम नापाक ही हो तो तुम्हारा वजू नहीं होगा, तुम्हारी नमाज नहीं होगी। और पाकी जो है उसके बारे में तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पाकी आधा ईमान है। जिस पाकी को आधा ईमान करार दिया जा रहा है, जब उसी पाकी को नापाकी की तरह रखा जाए, उसी पाकी को सही से हासिल नहीं किया जाए और नमाजें भी पढ़ी जाएं, रोजे भी रखे जाएं, तो क्या वो नमाज रोजे तुम्हारे मुंह पर नहीं मारे जाएंगे? जब भी गुस्ल वाजिब हो तो जल्दी जल्दी गुस्ल कर लिया करो। पाकी हासिल करने में जितनी जल्दी की जाएगी उतना ही ज्यादा बेहतर होगा, और पाकी हासिल करने में अगर देर की जाएगी तो गुनाहों की नहुसत होगी, नमाज कज़ा करने का भी गुनाह होगा और नापाक रहने का भी गुनाह सर पर होगा। आजकल औरतें इन चीज़ों को मामूली समझती हैं कि गुस्ल कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन गुस्ल कर लेंगे बड़ी बात नहीं। लेकिन जो तरीका गुस्ल का बताया गया है, शरीयत ने जो तरीका पाक होने का बताया है, उस तरीके से अगर आप गुस्ल नहीं करती तो आप चाहे दिन रात पानी में ही डूबी रहें, आपका गुस्ल नहीं होगा, आप पाक नहीं होंगी। इसलिए जो तरीका इस्लाम ने बताया उस तरीके से गुस्ल करें ताकि जहन्नम का ईंधन बनने से खुद को बचा सकें और इस अजाब से खुद को बचा सकें। मेरे और आपके नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी औरत को जहन्नम में देखा कि उसका चेहरा सूअर की तरह है और बाकी का जिस्म गधे की तरह, और उस पर सांप और बिच्छू लेटे हुए हैं। हजरत फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, बाबा जान, उसे उस अजाब में क्यों मुब्तला किया गया? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत गीबत और चुगलखोरी किया करती थी, जिसकी वजह से जहन्नम में उसे सूअर की तरह उसके चेहरे को कर दिया गया और उसके जिस्म को गधे की तरह कर दिया गया और उसके सारे जिस्म पर सांप और बिच्छू लेटे हुए थे। और फिर मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो औरत झूठ बोलने वाली थी, वो औरत चुगली किया करती थी, इसलिए उस पर ये अजाब हो रहा था। ये गुनाह तो औरतों में बहुत ही ज्यादा आम है, क्योंकि जहाँ भी दो चार औरतें बैठ जाती हैं वहाँ किसी न किसी की ग़ीबत शुरू हो जाती है। जहन्नम में औरतों की कसरत होगी तो उसकी एक वजह यह भी है। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात, ज्यादा से ज्यादा सदका दिया करो, इसलिए कि जहन्नम में मैंने औरतों को ज्यादा तादाद में देखा है। और इसकी वजह ये बताई कि औरतें बहुत ज्यादा लान तान करती हैं और बहुत ज्यादा गीबत व चुगलखोरी करती हैं। इसलिए मेरी बहनों, इन गुनाहों से बचो जिससे तुम बच नहीं सकती। ये ऐसी चीज नहीं है कि जिसको तुम छोड़ नहीं सकती। अभी तक जितने गुनाहों का भी जिक्र किया गया जिसकी वजह से औरतों को जहन्नम में इस कदर शदीद अजाब में मुब्तला किया जाएगा, वो ऐसे नहीं कि जिनसे तुम बच नहीं सकती, जिन्हें तुम छोड़ नहीं सकती, बल्कि हर एक गुनाह ऐसा है जिसको छोड़ना मुमकिन है, जिनसे तौबा मुमकिन है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा कबूल फरमाने वाला है। मेरी बहनों, खुद पर रहम करो, अपने आप पर तरस खाओ और इन गुनाहों से तौबा करो और गुनाहों को छोड़ दो। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में जिन औरतों को अजाब में मुब्तला देखा, उन औरतों की फुर्सत में तुम्हारा नाम निकल जाए। छठी औरतें जिनको मेरे और आपके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम में देखा तो उस हाल में देखा कि वो कुत्ते की शक्ल में है और उसके मुंह में आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते से निकल रही है। सैयदा फातिमा ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि बाबा जान, उसे ये अजाब क्यों दिया जा रहा है? इस अजाब में इसे मुब्तला करने की वजह क्या है? नबी पाक अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी बेटी फातिमा वो औरत एहसान करती थी और एहसान जताया करती थी, किसी के साथ भलाई करके उसे जताया करती थी, भलाई करने के बाद ये उम्मीद रखती थी कि उसके साथ भी वैसा ही सलूक किया जाए, और अगर वैसा सलूक नहीं किया जाता तो फिर वो लान तान करती थी। इस औरत को एहसान जतलाने की वजह से इस गुनाह में मुब्तला किया गया। अल्लाहु अकबर। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसे तो कुत्ते की शक्ल में बदल नहीं दिया गया, मुंह से आग दाखिल की जा रही है और पीछे के रास्ते से निकाली जा रही है, और जहन्नुम के फरिश्ते उसे गर्दों से मार रहे हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसका ये अजाब दो गुनाहों की वजह से हो रहा है। एक तो हसद की वजह से, आजकल हसद की बीमारी भी आम हो चुकी है। अगर किसी को अच्छा पहनते देखते हैं, किसी को अच्छा औरतें देखती हैं, किसी को अच्छा खाते देखती हैं, किसी को अच्छा घर देखती हैं, किसी की अच्छी गाड़ी देखती हैं, तो लोगों में जलन शुरू हो जाती है, हसद करना शुरू कर देते हैं। और हसद ये है कि वो चाहते हैं कि उनकी नेमतें बर्बाद हो जाएं, ज़ायल हो जाएं, और उनकी नेमतें मेरे हिस्से में चली आएं। हसद एक बहुत बड़ा गुनाह है। अगर आपको किस लिए कुछ करना चाहती हैं तो आप रश्क कर सकती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नेमतें उसे अता की हैं वो आपको भी अता की है। रश्क का मतलब ये है कि अगर अल्लाह ने किसी बंदे को नेमतों से नवाजा है तो आप उसके लिए बेहतर दुआ करें कि या अल्लाह तूने अपने इस बंदे को जो नेमतें अता की हैं तो उसको इस नेमतों के साथ खुश रख और मुझे भी इन नेमतों में हिस्सा अता फरमा, तो उसे रश्क कहा जाता है। लेकिन अगर ये नीयत है कि उसकी नेमतें ज़ाय हो जाएं, बर्बाद हो जाएं और मुझे मिल जाएं, तो इसी को हसद कहते हैं। फ़र्क ज़रा सा है लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है। और दूसरा गुनाह यह बताया कि वो एहसान करके जितलाया करती थी, किसी के साथ भलाई करती तो फिर भलाई करने के बाद वो उसे जिताया करती, जब कभी मौका मिलता तो उसे बेइज्जत कर दिया करती थी। इस गुनाह की वजह से इस औरत को जहन्नम में कुत्ते की शक्ल में बदल दिया गया। अल्लाहु अकबर। मेरी बहनों, ये 6 गुनहगार औरतों का जो जिक्र मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इन गुनाहों से बचना बहुत मुश्किल नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौफीक अता फरमाए तो हम ज़रूर इन गुनाहों से बच सकते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी, क्योंकि जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे अल्लाह का करम भी नहीं होगा। अल्लाह की करम और उसकी मेहरबानियाँ उन्हीं के साथ होती हैं जो गुनाहों से बचना चाहते हैं। अगर हम नहीं बचना चाहते तो हमें कुछ नहीं हो सकता। तो हमें चाहिए कि हम आज ही तौबा करें इन गुनाहों से और अहद करें कि इन गुनाहों में से जो गुनाह हमारे अंदर अभी मौजूद है, जो भी हम करते आए हैं या कर रहे हैं, आज के बाद उन गुनाहों के बारे में सोचना भी हम पर हराम है। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाहा तो हमें तौबा नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें तौबा तौफीक फरमाएगा और उन गुनाहों से भी बचाएगा और जहन्नम के दर्दनाक अजाब से भी बचाएगा। मेरी गुजारिश है आखिर में आप सभी से कि इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि औरतें इन गुनाहों से बच सके और ख़ुद को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा सके। आपकी एक शेयर आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।